ઓમ શાંતિ. આજે તારીખ 9 જુલાઈ 2021. બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો. मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। तो આપણે बिगड़ीने બનાવવાવાળા बिगड़ी ક્યારથી શરૂ થઈ? તો દ્વાપર યુગથી આપણી સ્થિતિ, આપણી આત્માની અંદર તમોગુણો પ્રવેશ કરતા ગયા, તો ત્યારથી આપણી હાલત બગડવાની શરૂ થઈ। તો બાબા આવે છે આપણી बिगड़ीને બનાવવા માટે, અર્થાત આપણી તકદીર બનાવવા, આપણું ભાગ્ય બનાવવા આવ્યા છે। તો બાબા કઈ રીતે ભાગ્ય બનાવે છે? તો આપણને જ્ઞાન દ્વારા, જ્ઞાનથી ભરપૂર કરીને આપણું ભાગ્ય બનાવી રહ્યા છે। પ્રશ્ન: तुम बच्चों को इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? बाबाए भट्टी करी छे, मैंने नहीं, बाबा कहते 7 रोज की भट्टी में पड़ो तो 7 रोज की भट्टी में तप कर तैयार होंगे। तो बाबाए कह્યું આ જ્ઞાન યોગ એક ભઠ્ઠી છે અને આ યોગ ભઠ્ઠીની અંદર કયો કાયદો છે? તો उत्तर, रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। बाबा કહે છે યાદની યાત્રામાં, એટલે કે આ રૂહાની ભઠ્ઠીમાં જે બેઠા હોય, જ્યારે યોગની યાત્રા કરતા હોઈએ, ત્યારે બુદ્ધિને ઇધર ઉધર નકારાત્મક વ્યર્થ વિચારોની અંદર ભટકાવાની નથી। एक बाप को याद करना है, बुद्धि एक जगह स्थिर करी परमात्मानी अंदर केंद्रित करी एक बाबा ने याद करो। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे। बाबाए શું કહ્યું? अगर बुद्धि इधर उधर भटके छे तो समझो योगમાં શું થશે? झुटका આવશે, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। કે યોગમાં બેઠા બુદ્ધિની અંદર બીજા બીજા વિચારો ચાલે છે, અગર બાબા યાદ નથી તો યોગમાં ઝુટકા આવશે, ઉબાસીમાંના બગાસા આવશે, કે જેનાથી વાતાવરણ, જે યોગનું વાયુમંડળ છે, એ ખરાબ થઈ જશે। ગીત છે દિલ કા સહારા टूट न जाए। ओम शांति। दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत ने 2 अक्षर सुने। कौन से गीत? दिल का सहारा टूट न जाए। बच्चों को सावधानी मिलती है, इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। બાબા કહે છે, બાબા સાવધાની આપે છે બાળકોને। કઈ વાતની? કે અત્યારે આ સમય દુનિયાની અંદર જે બી લોકો છે, હરેકની તકદીર, હરેકનું ભાગ્ય બગડેલું છે। કોના સિવાય? સિવાય બાબાના બાળકો સિવાય બધાના જ ભાગ્ય, બધાની જ તકદીર બગડેલી છે। તો તુમ્હારી તકદીર તો અબ સુધર રહી હૈ, કારણ કે ભગવાન મળ્યા છે। ભગવાન દ્વારા આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, રાજયોગ કરી રહ્યા છે, જેના દ્વારા આપણી તકદીર સુધરી રહી છે। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा ने શું કહેવાય છે? તકદીર બનાને વાલા, ભાગ્ય બનાવવા વાળા છે શિવ બાબા। અને શિવ બાબા કેટલા મીઠા છે? बाबा अक्षर बड़ा मीठा है, बाबा से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। दुनियाની અંદર લૌકિક પિતા હોય તો પિતા, લૌકિક પિતા દ્વારા કોને વારસો મળે? પુત્રને મળે છે। પુત્રીને કોઈ પિતા વારસો આપતા નથી। तो बाबा कहते हैं बच्चे को मिलता है, बच्ची को तो नहीं मिलता। यहाँ बच्चा व बच्ची
सब વર્ષે કે અધિકારી હે। બાબા પાસે તો બાબા કોઈ શરીર થોડી જુએ છે, બાબા તો આત્મા સ્વરૂપે હરેક બાળકને જુએ છે। તો બાબા કહે છે કે મારા માટે તો ચાહે દીકરો હોય કે ચાહે દીકરી, મને ચાહે સ્ત્રી છે કે ચાહે પુરુષ, हरेक मारा वारसाना अधिकारी छे। तो बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को, अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स हैं। बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है ना, क्योंकि આપણે ખબર છે આપણે કોણ છે, आत्मा आत्मा भाई भाई छे, एक भगवान के बच्चे हैं। फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों? આપણે એક સ્વયં પરમાત્માના બાળકો છીએ। તો બાબા કહે છે फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों हो? भाई भाई हो तो फिर सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म अनेक मत है और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई चलती ही है। लड़ाईનું કારણ શું છે? રાવણ રાજ્ય છે। તો મુખ્ય વાત એ છે કે રાવણ રાજ્ય છે, તો રાવણ રાજ્યમાં લડાઈ ઝઘડા થવા નોર્મલ વાત છે। પરંતુ બાબા કહે છે દુનિયાની અંદર અનેક ધર્મ છે, અનેક મત છે, तो लड़ते ही रहेंगे, क्योंकि सब में विकारों की प्रवेशता है। काम विकार पर भी कितना लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है, काम के लिए बहुत लड़ते हैं। કારણ કે બ્રહ્મા બાબા હતા તો બ્રહ્મા બાબાને તો રાજા રજવાડાઓની ખબર હતી। तो बाबा के जे राजाओं ने भी क्या हुआ, विकारों के लिए बहुत लड़ाई झगड़ा किया। तो वही लड़ते हैं। આપણે રાજા રજવાડાઓના જે પિક્ચર હોય, સિરિયલ હોય, કોઈ જોતા હોય તેમાં શું બતાવે છે? હા, કે એક રાજાએ બીજી રાજા ઉપર ચઢાઈ કરી, પછી એ રાણીને પોતાને ત્યાં લઈ આવે। મને શાના માટે છે આ બધું? વિકારો માટે। तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, कितना खुश होते हैं। कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है। क्रोध वाले को तो क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभी ही कहेंगे, लेकिन जो कामी हैं उनके बहुत नाम रखे हुए हैं। ક્રોધવાળા તો બાબા કહે છે નોર્મલ કે ક્રોધી જ કહેવાય, લોભવાળા લોભી જ કહેવાય, પરંતુ જે કામ વિકારને ધારણ કરીને બેઠા છે તો બાબા કહે છે ક્રોધી લોભી કરતાં બી વધુ વિકારી કામી કહેવાય છે। इसीलिए कहा जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया है। दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला। શાસ્ત્રમાં શું બતાવ્યું છે? સાગર મંથન કર્યું, સમુદ્ર મંથન, તો સમુદ્રમાંથી અમૃત निकल्યું। कलश लक्ष्मी को दिया। कितनी कहानियाँ हैं। इसमें भी बड़ी बड़ी बात है सर्वव्यापी की। गीता का भगवान कौन, पतित पावन कौन, प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाना जाता है। कया चित्रों? कि गीताना भगवान कोण छे, सर्वव्यापी शू, गीताना भगवान शू छे, पतित पावन कोण छे। तो बाबा कहे छे प्रदर्शनीय चित्रों पर आ वातो क्लियर करो। पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं, व पानी की नदी व सागर क्या है। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुमको किसने पावन बनाया। बाबा पहलो प्रश्न पूछे छे, मीठे मीठे बच्चों तुमको पावन किसने बनाया। तो क्या कहेंगे? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है। वह पतित पावन कब आते हैं। यह खेल कैसे बना हुआ है, कोई भी नहीं जानते। कौन से सवाल बाबा ने पूछे कि पावन को किसने बनाया, बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है। हाँ, बाबा कहते
पतित पावन कब आते हैं, यह खेल कैसे बना हुआ है, ये दुनिया वाले नहीं जानते। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, પીસફુલ। શિવ બાબાને શું કહ્યા? નોલેજફુલ, જ્ઞાનના સાગર, બ્લિસફુલ, દયાના સાગર, पीसफुल, शांतिना सागर। तो गाया भी जाता है बिगड़ी को बनाने वाला एक है। हाँ, आत्माओनी बिगड़ी ने बनावा वाला, तकदीर बनावा वाला, भाग्य बनावा वाला एक परमात्मा छे। यह तो समझने में आता है। बरोबर रावण हमारी बिगाड़ते हैं। बगाड़वा वाळू कोण छे? रावण। अने सुधारवा वाळू शिव बाबा छे। तो बरोबर रावण हमारी बिगाड़ते हैं। फिर क्या हुआ? यह खेल है हार और जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं। यह भारत का दुश्मन है। रावण कौन से? भारतનો दुश्मन। भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। કારણ કે બીજા દેશોમાં કોઈ રાવણનું પુતળું બનાવીને સળગાવતા નથી, ભારતમાં જ સળગાવે છે, કારણ કે ભારતવાસીઓના દુશ્મન છે। उनसे पूछो, माना भारतवासियों से पूछो, कब से जलाते आए हो? भारतवासीओने पूछो, बाबा કહે છે, ક્યારથી આ રાવણનું પુતળું બનાવીને સળગાવતા આવે? तो कहेंगे यह तो अनादि चला आता है, जब से सृष्टि शुरू होती है। क्यारથી સળગાવવાની શરૂઆત કરી? तो दुनियावाળા શું કહેશે? જ્યારથી સૃષ્ટિની શરૂઆત થઈ। शास्त्रों में जो पढ़ा सत सत करते आए हैं। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। मोटाમાં મોટી ભૂલ કઈ છે? हाँ, बाबा कहते हैं मुख्य भूल है ईश्वर को, भगवान को सर्वव्यापी कहना। बाप यह नहीं जानते कि यह किसकी भूल है। आ भूल कोने करी छे ए बाबा नहीं जानता, परंतु आ बात लखी छे कि भगवान सर्वव्यापी छे। तो ये भी ड्रामा में नोंध है। बाबा कहे भूलो थवी, मारी निंदा थवी, ए भी ड्रामा में नोंधायेलू छे। हार जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। आ खेल कयो छे? हार अने जीतनी खेल छे, जेमां मायाथी हार्या तो हार्या अने मायाथी जीत्या तो जीती गया। माया से हार खाते हैं, वह भी समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। बाबा કહે છે માયાનું રાવણનું રાજ્ય પૂરું અડધું કલ્પ 2500 વર્ષ ચાલે છે, કોઈ એક સેકન્ડનો બી ફરક નહીં હોતો, પૂરા 2500 વર્ષ ચાલે છે। और राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलते हैं। राम राज्य पूરું 2500 વર્ષ ચાલે છે, રાવણ રાજ્ય પણ પૂરા 2500 વર્ષ ચાલે છે। एक सेकंडનો બી બંનેમાં ફરક નથી હોતો, एक्यूरेट, कोई भी खामी होती नहीं। तो बाबा कहते सतयुग में तो लंका होती नहीं, वह तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है। लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है। बुद्धिનું તાળું કઈ રીતે ખુલે છે? पढ़ाई द्वारा, माना ज्ञान द्वारा, क्योंकि रोशनी आती है ना। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। જે જ્ઞાન લઈએ છીએ, બાબાની મુરલી સાંભળીએ છીએ કે જેના દ્વારા આત્માને જ્ઞાનનું ત્રીજું નેત્ર મળે છે, તો બાબા કહે છે એના દ્વારા આપણી બુદ્ધિ ઉપર પ્રકાશ પડે છે। બુઢિયા बहुत बातें समझ न सके, ને જે મોટી ઉંમરવાળી માતાઓ હોય છે, અનપઢ માતાઓ હોય છે, બહુ વાતોને સમજી શકતા નથી।
इन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है जो ही अंत में काम आती है। मनुष्य शास्त्रों को बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर कह देते हैं कि राम राम कहो। हाँ, દુનિયામાં શાસ્ત્રોમાં કથાઓ થતી હોય છે તો એ કથાઓમાં આખી કથાઓ વાંચતા હોય, પરંતુ પાછળથી એક અક્ષર કહી દે, શું કે રામ રામ कहो। ऐसे नहीं कहते शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ, जो हमने सुना है जो औरों को जाके सुनाओ। नहीं, वो तो सिर्फ इतना ही कहेंगे राम राम कहो। अभी विनाश तो सबका होना है। तो बाबा कहते जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं अंत में भी वह याद आता है। तो अब भी विनाश तो सबका होना है। तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे? हाँ, बाबा कहते दुनिया वाला भी शू कहे छे राम राम कहो, कारण के अंत समय छे, विनाश तो बधानो थवानो छे, परंतु विनाश तो बधानो थशे, परंतु अंत समय जेनु जास्ती चिंतन हशे तो ए ज याद आवशे। तो तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे? कोई कृष्ण को करेंगे, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया खेल खलास। हाँ, बाबा कहे छे कोई कृष्ण ने करशे, कोई पोताना गुरु ने करशे, कोई पोताना शरीर ने करशे, कोई शरीरना संबंधों ने भी याद करशे। परंतु बाबाए शू कह्युं? अगर देह ने शरीर ने याद कर्યું माना शू समझवानुं? खेल खलास। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। बाबा एक बात समझावे छे, कई? पोताने आत्मा समझो अने बाबाने याद करो। चार्ट रखो कि हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना पावन होते जाएंगे। तो बाबा कहे छे चार्ट राखो कि આપણે કેટલું બાબાને યાદ કરીએ છીએ। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। आत्मा की बात है ना, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है आत्मा एक स्टार बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है। आत्मा केवी छे? भ्रुकुटीना मध्यमां चमकतो एक सितारो छे। तो बाबा कहे छे आत्मा स्टार है, बिंदी है, अति सूक्ष्म है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया। भगवान क्यारे आवे छे? तो भगवान आवानो समय दुनियावाळाए शुं कर्युं? कल्प बाबा तो कल्पना संगम युगे आवे छे, परंतु लोकोए युगे युगे लखी दीधुं। तो मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया। मैंने कहा कि कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, घोर अंधियारा और घोर सोजरे के समय पर। बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं। बाबा के जे 5000 वर्षનું ચક્ર પૂરું થાય ત્યારે હું આવું છું, કલ્પના સંગમ યુગે। બાકી युगे युगे આવવાની કોઈ જરૂરત જ નથી। सीढ़ी उतरते ही आते हैं। जब पूरे 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं तब बाप आते हैं। यह ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। बाबा क्यारे आवे छे? ज्यारे आ 84 जन्मोनी सीढ़ी आपणे संपूर्ण उतरी जईए छे त्यारे बाप आवे छे। सन्यासी लोग तो कह देते हैं इन्हों के चित्र सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। बाबा के छे आ चित्रों में कल्पना की कोई बात ज नथी, बधुं रियल छे। परंतु साधु संत शुं कहे छे?
ये सब कल्पना है। यह सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े। इसीलिए यह चित्र बनाए गए हैं। यह प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेंगी। बाबा કહે છે આગળ જતા સમય આવશે કે આ પ્રદર્શનના ચિત્રો દેશ વિદેશમાં ઢેરના ઢેર લાગશે, પ્રદર્શનીઓ ઢેરની ઢેર થશે। तो बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं, है तो सब बच्चे ना, अनेक धर्मों का यह जाड़ है। बाप बैठ समझाते हैं, यह सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं। काम अग्नि में सौथी पहला कोण विकारों में कोण प्रवेश करे छे? तो जे सतयुग में पहला आवे छे तो द्वापर में सौथी पहला विकारी भी ए बने छे। इसीलिए काले हो गए हैं। अभी सबकी सदगति होनी है। तुम निमित्त बनते हो। सर्व मनुष्य आत्माओनी सदगति करवा माटे बाबाए आपने निमित्त बनाव्या छे। तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। बाबा शू कहे छे? सिर्फ बाबा ने याद करो। आत्मा ने ही दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल ही सहज बताते हैं। तो बाबा कहे छे आत्मा पतित बने, दुर्गति ने प्राप्त करी तो शरीर भी केवुं मळे छे? पतित। तो आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं? दुनियानी वातो छे। तो बाबा कहे छे अगर आपणुं त्रिमूर्तिनुं चित्र लगावीए ब्रह्मा विष्णु शंकर वाळुं तो ए ब्रह्मानुं चित्र जोईने लोको बूमो पाडवा लागे कि आ ब्रह्माने आ दादाने केम ब्रह्मा बनावीने बेसाड़ी दीधा। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, यहाँ कहाँ से आया? यह दादा तो नामी ग्रामी था। लौकिक जीवन में लेखराज दादा नामी ग्रामी हता। अखबारों में सब जगह पड़ा था। एक जौहरी कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको 16,108 रानियां चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था बगाने का। अब एक एक के माथा कौन मारे? बाबा कहे छे ए समय लोकोए न्यूज़पेपर में केवी अफवा उड़ावी थी कि आ दादा एक जौहरी छे अने ए जौहरी बधाने शुं कहे छे कि हूँ श्री कृष्ण छूँ, मारे तो 16,108 राणियां जोईए। तो आ बधी वातो दुनियानी अंदर बहु ज फैलाई गई थी। तो बाबा के एक एकनी साथे माथुं कोण मारे? इतने ढेर मनुष्य हैं। आबू में भी कोई आते हैं तो उनको जट कहते हैं, अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो? कोई आबू आवे तो लोगों को शू पूछे? अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो? वह तो जादू कर देती है, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती है, लंबी चौड़ी बात बताकर माथा खराब कर देते। दुनियानी वातो छे ने। तो कोई व्यक्ति ब्रह्मा कुमारीज में आवे तो लोकोनी मान्यता केवी बनी गई छे? ब्रह्मा कुमारीओ तो स्त्री पुरुष ने भाई बहन बनावी दे, एमनी पासे जवाय नहीं, है तो जादू करी दे छे। बाप कहते हैं तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अर्थात समग्र सृष्टि में सर्वशक्तिमान, सब वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला। बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं क्योंकि वह सब वेदों शास्त्रों आदि को पढ़ते हैं, फिर बनारस में जाकर टाइटल ले आते हैं। जे विद्वान पंडित होय, शास्त्रों वेदोना ज्ञाता होय तो पछी ए शुं करे छे?
બનારસ જાય, પરીક્ષા આપે ને પછી ટાઇટલ લઈ આવે. ટાઇટલ કેવા? महामहोपाध्याय, પછી श्री श्री 108 सरस्वती. यह सब टाइटल्स वहाँ ही मिलते हैं. जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिलता है. મને જે શાસ્ત્રોમાં વેદોમાં બહુ હોશિયારી બતાવે છે, જેમની હોશિયારી હોય છે એ મોટા टाइटल લઈ શકે છે. शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए. जनक માટે શું કહ્યું છે? જનકે શું કહ્યું કે સાચું બ્રહ્મ જ્ઞાન કોઈ અમને સંભળાવે. अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहाँ की है. શાસ્ત્રોની અંદર કોઈ બ્રહ્મનું તો જ્ઞાન નથી, દુનિયાનું જ્ઞાન છે. कहानी बड़ी बना दी है, शंकर पार्वती की कहानी लिखी हुई है. कितनी कहानियां बैठ बनाई है. શાસ્ત્રોમાં શંકર પાર્વતીની કહાની એટલે કઈ? અમર કથા બી બનાવી, પછી શંકરજીની ગૃહस्थी બી બતાવી. શું બતાવ્યું છે શાસ્ત્રોની અંદર? तो बाबा कहते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई. वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर का नाम दे दिया. भागवत आदि में यह सब इस समय की बात है. फिर कहानी में बताते हैं. उनको ख्याल आया राजा को यह ज्ञान जाकर दूं. बाप भी समझाते हैं राजाओं को जाकर ज्ञान दो. बाबाए શું કહ્યું? જ્ઞાન રાજાઓને જઈને આપો, જરૂરી છે. तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने. तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई. अब फिर सूर्यवंशी राजा लेनी है तो पुरुषार्थ करो. बाबा કહે છે રાજાઓની પાસે જઈને હરેકને સંદેશ આપો કે તમે સતયુગમાં મહારાજા મહારાણી હતા, સૂર્યવંશી હતા, પરંતુ ચંદ્રવંશી બન્યા, વૈશ્યવંશી બન્યા, શૂદ્રવંશી બન્યા. જે તમારી સૂર્યવંશી રાજાઈ હતી એ ચટ થઈ ગઈ. હવે ફરીથી પુરુષાર્થ કરો અને સૂર્યવંશી રાજાઈ ले लो. राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है. फिर आकर बेहद का राज्य लो. राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती हैं, फिर उनको मिलती थोड़ी ही है. उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियां देखते हैं. कितनी चिट्ठियां तो फेंक भी देते हैं. રાજાઓને કોઈ ચિઠ્ઠી લખે તો રાજા થોડી બધી બધી ચિઠ્ઠીઓ જાતે વાંચતા હોય. એમના પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી હોય એ પહેલાં બધી ચિઠ્ઠીઓ વાંચે ને અમુક ચિઠ્ઠીઓ તો એવી લાગે તો ફેંકી भी दे छे. कोई में ऐसी जरूरी बात होती है तो उनको दिखा देते हैं. कहते हैं अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया. यह भी अब है. अब बाप कितना अच्छी तरह बैठ तुमको समझाते हैं. जो समझने वाले नहीं हैं वह यहाँ वहाँ देखते रहेंगे. અને જે બાબા સમજાવે છે એ સમજવાવાળા છે તો એ ધ્યાનથી સાંભળશે, અને જે સમજવાવાળા નથી આજુબાજુ ડાફેરા મારા કરશે. बाबा जट समझ जाते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है. बाबा चारों तरफ देखते भी हैं, सभी अच्छी तरह सुनते हैं. इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, उबासी देते रहते हैं. ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो जुट के खाते रहेंगे, नुकसान हो जाएगा. बाबा तो समझावे छे परंतु जेनी बुद्धि में ना बैठવું હોય એ શું કરશે? બેસતું હોય આજુબાજુ ડાફેરા મારશે, પછી जुटका खासे, बगासा खासे. तो बाबा कहते उनका ही नुकसान होता है. कराची में इन बच्चों की भट्ठी थी. कोई जुटका खाता था तो फिर जट बाहर निकाला जाता था. अपने ही बैठते थे, बाहर का कोई आता नहीं था. शुरू में इन्हों का बड़ा पार्ट चला है, लंबी हिस्ट्री है.
शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी। બાબા કહે છે શુરૂમાં આ પાઠ ચાલ્યો હતો એ સમયે શરૂઆતમાં બચ્ચીઓ ધ્યાનમાં જતી હતી। આ પાઠ ચાલ્યો હતો तो बाबा कहते अभी तक भी कहते रहते जादू है। परम पिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना। शिव बाबा देखते हैं, इनका बहुत प्रेम है तो देखने से ही जट ध्यान में चले जाते हैं। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है। कोई मरता है तो भी कहते हैं वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। अभी यह तो है ही नहीं, अभी यह तो है ही नर्क। કારણ કે સ્વર્ગ તો બધાને પ્યારું લાગે, સ્વર્ગીય દુનિયા, દેવી દેવતાઓની દુનિયા કે જ્યાં રાસલીલા ચાલતી હોય, સંપૂર્ણ સુખ હોય છે। તો બાબા કહે છે તો હરેકને પ્યારું લાગે છે। परंतु सब नरकवासी है अब, तब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं। अभी सिर्फ यह तुम जानते हो, हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नरकवासी बन गए हैं। હવે બુદ્ધિમાં બેઠું કે આપણે પહેલાં સ્વર્ગવાસી હતા, 84 જન્મો લીધા અને નરકવાસી બની ગયા છે। अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में बहुत पद हैं। पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो यह मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है फॉलो मदर एंड फादर। શું કહેવાય છે? फॉलो मम्मा बाबा। जैसे यह पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो। જેવી રીતે મમ્મા બાબા પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છે તો બાબા કહે છે तुम भी करो। यह भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो तुम भी बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। तो बाबा કહે છે જેવી રીતે મમ્મા બાબા સ્વદર્શન ચક્રધારી બને છે, બાબાને યાદ કરે છે, વારસાને યાદ કરે છે, એવી રીતે તમે બી मम्मा बाबा को फॉलो करो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सतयुग में उच्च पद पाने के लिए मात पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। ऊंचું પદ મેળવવું હોય તો મમ્મા બાબાને પૂરેપૂરું अनुसरण करो। उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। ऊंच पद મેળવવા માટે શું કરવાનું? પહેલું તો મમ્મા બાબાને ફોલો કરો, એમના જેવો પુરુષાર્થ કરો, સેવામાં તત્પર રહો અને જ્ઞાન લો। એ સમય એકાગ્ર બુદ્ધિ રાખીને જ્ઞાન લેવાનું છે। वरदान। सदा साथीपन की स्मृति और साक्षीपन की स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों साथ हैं, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। જ્યાં સુધી આ સૃષ્ટિ પર આ શરીર દ્વારા પાઠ ભજવવાનો છે ત્યાં સુધી આત્મા અને શરીર બંને અલગ નથી થઈ શકતા। ऐसे शिव और शक्ति दोनों का इतना गहरा संबंध है जो सदा शिवमयी शक्ति
शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं, જે સદૈવ શિવમય શક્તિ સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈને ચાલે છે, તો ઉનકી લગન में માયા વિઘ્ન ડાલ નહીં શકતી. જે શિવની સાથે કમ્બાઇન્ડ સ્વરૂપે શક્તિ અવતાર બનીને રહે છે, તો એને માયા ક્યારેય વિઘ્ન નાખતી નથી. वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं. ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो. स्लोगन: निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ. निर्विघ्न સ્થિતિ અને એકરસ સ્થિતિનો અનુભવ કરવો હોય, એક રસમાંના એકની અંદર એકની રચનામાં સમાયેલા અને નિર્વિઘ્ન, તો એ અનુભવ કરવો હોય તો બાબા કહે છે એકાગ્રતાનો અભ્યાસ વધારવો પડશે. અચ્છા, ઓમ શાંતિ.